The next chapter that we are talking about is cost accounting system, where basically you need to simply understand a few journal entries. If you know the entries and if you know the methodology of preparing accounts, you're through in this chapter. See, whenever you have cost accounting to be done, in cost accounting there are specific accounts to be prepared. Your first account is stores. Your stores account will completely be talking about material transactions, and your next account will be WIP account, work in progress, and your work in progress account will be talking about production. So anything related to material will be passing through stores account at least once, and anything related to finished goods will be recorded in finished goods account. But anything related to production will go through WIP account first. So stores account, WIP ledger control account, finished goods ledger control account. These are your three main accounts. After that, you have wages control. You may be required to prepare three overhead account. One is production overhead ledger control, then admin overhead ledger control, selling and distribution overhead ledger control. Then you have cost of sales, sales, costing P&L, and then this is a special account. Whenever you go for non-integrated accounting, all your real and personal accounts are not to be prepared. Instead of real and personal accounts, you are supposed to prepare cost ledger control account. Instead of real and personal accounts, you are supposed to prepare cost ledger control account. All transactions related to your real and personal accounts will be recorded through cost ledger control account. All your transactions related to real and personal accounts will be recorded through cost ledger control account. So let's understand journal entries. When you buy material purchase, whether it is cash, whether it is credit, whether it is direct, whether it is indirect, doesn't matter. In all the cases, your store's balance increases. If you buy the material, your store's balance increases. Stores means material, material means debit balance increases. So naturally, you'll have to debit stores account. And the normal entry is material to cash bank, creditors. Cash bank creditors ke badle, the entry will be to cost ledger control account. And if it is returned, you will have to pass this entry. Returned cost ledger control to stores, because the stores balance, the material balance will go down. So if material is purchased, see, when I buy the material, I don't know whether it is, I don't want to know whether it is direct or indirect. अगर मैं एक शर्ट बना रहा हूं तो मैं क्लॉथ मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, ऑयल मेरे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल है, कार्टन्स बॉक्सेस इन विच दो शर्ट्स आर पैक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर आल्सो इनडायरेक्ट मटेरियल. पर जब मैं खरीदता हूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है वेदर आई एम बाइंग क्लॉथ, वेदर आई एम बाइंग ऑयल, वेदर आई एम बाइंग प्लास्टिक बैग्स. मेरे लिए तो सब कुछ खरीदना ही पड़ेगा. सो फॉर मी इट इज मटेरियल डेबिट. But instead of material debit, we'll write stores debit. Stores balance will go up and CLC balance will be credited. रिवर्स किया क्योंकि मैंने रिटर्न किया. अब इसके बाद आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के एंट्री स्टार्ट हो जाएंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट फॉलो नहीं करता. अब मैंने मटेरियल खरीद के रखा तो है वेयर हाउस में, लेकिन अब उसके यूज के हिसाब से मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो डायरेक्ट मटेरियल विल बी चार्ज्ड टू WIP अकाउंट and indirect material will be charged to overheads account. Direct material gets charged to WIP account and indirect material gets charged to overheads account, and in both the cases stores account will be credited. Stores account credit करूंगा तो वो amount अब stores से निकल के डायरेक्ट होगा तो WIP में जाएगी, इनडायरेक्ट होगा तो ओवरहेड्स में जाएगी. और अगर शॉप फ्लोर से यानी कि फैक्ट्री में जो एरिया होता है जहां पे द एक्चुअल प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, वहां से अगर मटेरियल वापस आता है तो मटेरियल स्टोर से वापस सोर्स में वापस आएगा तो स्टोर्स का बैलेंस बढ़ेगा, और वो फैक्ट्री से आया तो WIP का बैलेंस कम होगा. स्टोर्स टू WIP विल बी द ट्रांजैक्शन. तो पहले तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद इन तीनों का ले लो. मटेरियल का अगर लॉस होता है
तो लॉस दो टाइप का होगा, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल हुआ तो कस्टमर को चार्ज करना है, इट विल बी चार्ज टू ओवरहेड्स अकाउंट। लेकिन अगर एबनॉर्मल हुआ तो आई कैन नॉट चार्ज इट टू द कस्टमर, आई हैव टू बेयर दैट लॉस ऑन माय ओन, सो इट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। सो एंट्री होगी ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट नॉर्मल लॉस के लिए, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस के लिए। और नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों केसेस में मटेरियल का बैलेंस तो कम होगा ही ना, डिस्ट्रॉय हुआ मतलब मटेरियल का बैलेंस विल गो डाउन, सो दैट विल बी योर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? कैरेज भी तीन टाइप का होगा, कैरेज मुझे तीन टाइप का होगा। एक तो एट द टाइम ऑफ परचेस, अगर मैं परचेस करने के टाइम पे कैरेज इनवर्ड इनकर कर रहा हूं तो दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सिंपल बात याद करने की कोशिश कीजिए, लाख रुपए का, 1,00,000 का मटेरियल मैंने खरीदा, आई परचेज मटेरियल ऑफ ₹1,00,000, आई पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000। आज तक आप लोग क्या करते थे इसका, यू आर एडिंग 10,000 टू द कॉस्ट ऑफ 1,00,000, you were adding 10,000 to the cost of 1,00,000, am I right? If you were adding cost of rupees 10,000 to 1,00,000, मतलब आप उस कैरेज इनवर्ड को भी मटेरियल कॉस्ट ही ट्रीट करते थे। So in that case, your on carriage on material purchase will be stores ledger control account debit to CLC. Carriage inward to cash bank ओरिजिनल एंट्री होती है, कैरेज इनवर्ड टू कैश बैंक ओरिजिनल एंट्री होती है, कैरेज इनवर्ड टू कैश बैंक ओरिजिनल एंट्री होती है। कैरेज के बदले आएगा स्टोर्स, कैश बैंक के बदले आएगा सीएलसी। अब मटेरियल आके वेयरहाउस में पड़ा है, अब वेयरहाउस से या स्टोर से मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोडक्शन के लिए और उसके एक्चुअल यूज के लिए। अगर ये डायरेक्ट मटेरियल होगा तो WIP विल बी डेबिटेड, अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो ओवरहेड्स विल बी डेबिटेड। लेकिन दोनों केस में कैश बैंक के बदले टू CLC आएगा। देखो ओरिजिनल एंट्री कैरेज की, कैरेज टू कैश बैंक, टू कैश बैंक के बदले it is 2 CLC. You are not passing entry for transferring material, वो आपने already कर दिया है। You are passing entry for transportation, guys. So it is carriage to cash bank, cash bank के बदले CLC, तो carriage inward to CLC एंट्री आएगी। रही बात डेबिट की, तो अगर कैरेज मटेरियल परचेस पे है तो स्टोर्स डेबिट, अगर कैरेज डायरेक्ट मटेरियल का है तो WIP विल बी डेबिट बिकॉज इट शुड बी चार्ज एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन कैरेज अगर इनडायरेक्ट मटेरियल का है तो इट विल बी डेबिटेड थ्रू ओवरहेड्स अकाउंट। ये होगा आपका कैरेज का ट्रांजैक्शन। वेजेस में, वेजेस पेड का एंट्री नॉर्मल आएगा, वेजेस कंट्रोल टू कैश बैंक, कैश बैंक के बदले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इमीडिएटली डायरेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू, direct wages will be transferred to WIP and indirect wages will be transferred to production overheads। तो इसमें तीन ही एंट्रीज होते हैं, wages control to cost ledger control account for incurring the cost, then direct wages को आप WIP में डालोगे, indirect wages को आप overheads में डालोगे, तो WIP debit to wages control, overheads debit to wages control, WIP debit to wages control, overheads debit to wages control। Is that clear? डायरेक्ट एक्सपेंस का एंट्री डायरेक्टली आएगा। सी डायरेक्ट एक्सपेंस टू CLC इज द एंट्री फॉर पेमेंट, और उसको बीइंग डायरेक्ट कॉस्ट उसको WIP में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू CLC पेमेंट का एंट्री, WIP टू डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफर का एंट्री, तो डायरेक्ट एक्सपेंस विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विथ WIP टू CLC। So WIP debit to CLC will be the transaction. Overheads incurred, overheads to cash bank, तो रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स को डेबिट करो, टू कैश बैंक नहीं लिख सकते तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन होगा WIP में, तो WIP को डेबिट करके, तो WIP को डेबिट करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट कर लो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर चार्ज करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर लो। एडमिन ओवरहेड्स का
अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो WIP में जाने दो, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, अगर जनरल एडमिन है तो उसको ट्रांसफर करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में. एनीथिंग आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड will go to cost of sales. मतलब admin general and selling and distribution both will be transferred to cost of sales. फिनिश गुड्स अगर प्रोड्यूस होता है तो फिनिश गुड्स बैलेंस इंक्रीज होता है, फिनिश गुड्स डेबिट, एंड टू दैट एक्सटेंट WIP विल लूज इट्स बैलेंस. फिनिश गुड्स जब डेबिट होता है तो फिनिश गुड्स विल increase its balance and WIP will lose its balance. So finished goods ledger control account debit, finished goods ledger control account debit to WIP ledger control account. क्योंकि WIP will no longer be called as WIP. So WIP का बैलेंस कम हो जाएगा, फिनिश गुड्स का बैलेंस बढ़ जाएगा. सेल्स का एंट्री डेटर्स टू सेल्स, कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स. ना डेटर, ना कैश, ना बैंक, आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू सेल्स. बस यही एंट्रीज आपको पास करते रहने और कुछ नहीं करना है आपको इस चैप्टर में. लेकिन क्लोजर के लिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, आपका सबसे पहला अकाउंट क्लोज होगा वेजेस कंट्रोल. सबसे पहले आपका अकाउंट क्लोज होगा वेजेस कंट्रोल. वेजेस कंट्रोल के बाद आप सारे ओवरहेड अकाउंट को क्लोज कर लो. वेजेस कंट्रोल के बाद आप सारे ओवरहेड अकाउंट को क्लोज कर लो. वेजेस के बाद आप सारे ओवरहेड अकाउंट को क्लोज कर लो. पहले तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है अपने पास, पहले तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है आपके पास. पहले आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज करना है. जनरली अकाउंट दिस इज ओपन टू क्लोज, शुरू होते ही खत्म हो जाता है. फिर आपका आएगा ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करने के बाद आप जाओगे स्टोर्स में, स्टोर्स लेजर कंट्रोल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स, फिर आपको क्लोज करना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आपको क्लोज करना होगा सेल्स, फिर आपको क्लोज करना होगा कॉस्टिंग P&L, और कॉस्टिंग P&L का बैलेंस प्रॉफिट या लॉस होगा विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू CLC अकाउंट. क्योंकि जनरली जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट. बट कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, वी कैन ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट, और वी cannot even show it as a reserves and surplus. We cannot show personal accounts. So कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका कॉस्टिंग P&L में से निकलेगा वो CLC अकाउंट में जाएगा, एंड फाइनली यू हैव टू क्लोज योर CLC अकाउंट. सो आपका क्लोजर इसी ऑर्डर में होना चाहिए. लिख दो चाहिए तो. पहले वेजेस कंट्रोल, फिर सारे ओवरहेड्स, सारे ओवरहेड्स के बाद स्टोर्स, WIP, फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करोगे, सेल्स क्लोज करोगे, कॉस्टिंग P&L क्लोज करोगे, फिर CLC क्लोज होगा. और एज फार एज ओवरहेड्स के क्लोजर की बात इज कंसर्न्ड, ओवरहेड्स में सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए होगी एब्जॉर्प्शन. आपके ओवरहेड्स में एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है. अगर आपके ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर इन ओवरहेड अकाउंट विल बी फर्स्ट ट्रीटेड एज एब्जॉर्प्शन. आपने इनकर्ड भी लिखा है, एब्जॉर्ब भी लिखा है. आपने इनकर्ड भी लिखा है, एब्जॉर्ब भी लिखा है, देन आपने अगर इनकर्ड लिखा है और एब्जॉर्ब लिखा है, देन इनकर्ड और एब्जॉर्ब आपने दोनों लिख दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रीटेड एज आइदर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन. अब जरा क्वेश्चन में एक चक्कर मारने का, प्लीज लुक एट द ट्रायल बैलेंस. अगर आपका ट्रायल बैलेंस ऐसे नजर आ रहा है जिसमें आपको ओवरहेड्स के ओपनिंग बैलेंस दिख रहे हैं, ओवरहेड्स के ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिख रहे हैं, ओवरहेड्स के ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि द कंपनी इज फॉलोइंग प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन. अगर ओवरहेड के डिफरेंस आपको दिख रहा है, ओवरहेड के बैलेंसेस अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है दैट यू आर फॉलोइंग कैरी फॉरवर्ड टेक्निक. लास्ट ईयर का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में ओपनिंग दिख रहा है. ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आया तो इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज कैरिड फॉरवर्ड, तो हम लोग भी वही करेंगे. वरना हमेशा सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई करने की कोशिश करो. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सीधा उठा के उस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को कॉस्टिंग P&L में डाल देना.
हमने जो चार्ट देखा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में, सेम चार्ट इज टू बी यूज्ड. पॉइंट नंबर 1, अगर ओवरहेड्स में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी एब्जॉर्प्शन. फैक्ट्री ओवरहेड्स की बैलेंसिंग फिगर एब्जॉर्प्शन अगर नहीं लिखा है तो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर लो. एडमिन जनरल दिया है, अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं है, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो. अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके पास पड़ा है और अगर उसमें भी बैलेंसिंग फिगर आती है लेकिन एब्जॉर्प्शन आपने नहीं लिखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी एब्जॉर्प्शन एंड इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. इज दैट पार्ट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके. और अगर एब्जॉर्प्शन भी आपने लिखा है, इनकट भी आपने लिखा है, आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, आपको अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन मिल रहा है देन इन दैट केस, सुनो, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अगर आपको मिल रहा है और अगर ओपनिंग बैलेंस ओवरहेड्स में नजर आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को लिख सकते हो. But if you come across a situation where you have under and over absorption but you do not have any opening balance, you come across a situation where you do have under over absorption but you do not have any opening balance in overheads accounts, in that case either you try to apply supplementary rate and adjust your under over absorption in the current period, or else you can straight away transfer it to the next, transfer it to costing P&L. Carry forward mat karna unless and until it is told, because if you can't see the opening balance in overhead account, that means they don't follow the practice of carrying it forward. Otherwise you would have seen the opening balance first. तो ये रहा आपका इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का बेसिक फंडामेंटल. नॉन इंटीग्रेटेड में ये होता है. इंटीग्रेटेड में करना क्या है? इंटीग्रेटेड में योर फर्स्ट 10 अकाउंट्स विल बी सेम, योर फर्स्ट 10 अकाउंट्स विल बी सेम, लेकिन कॉस्टिंग पीएनएल के बाद आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट विच इज योर फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट. और कॉस्टिंग पीएनएल का पूरा प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में, जहां पे अदर नॉन कॉस्ट आइटम्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा. कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट तक सब कुछ नॉर्मल होगा. हाँ, एक बैड न्यूज ये है कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग जब बनाते हो तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मर्ज टुगेदर. तो यहाँ पे मुझे कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स सब कुछ दिखाना पड़ता है. तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं आएगा. डेटर्स के बदले डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स ही आएगा. कैश बैंक के लिए कैश बैंक ही आएगा. तो नॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग बनाइए. नॉर्मल तरीके से पहले 10 अकाउंट्स आएंगे. स्टोर्स, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स अकाउंट पहले 3, उसके बाद वेजेस कंट्रोल, उसके बाद तीनों ओवरहेड्स आएंगे, उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, उसके बाद आएगा सेल्स अकाउंट, उसके बाद आएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, जो आज तक हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, दैट एंटायर प्रॉफिट विल गेट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट एंड दैट्स हाउ योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स विल गेट कनेक्टेड टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. एंड दैट्स हाउ योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स विल बी कनेक्टेड टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. फिर नॉन कॉस्ट आइटम्स आप रिकॉर्ड करो पीएनएल अकाउंट में, फाइनल प्रॉफिट मिलेगा जो बैलेंस शीट में दिखेगा. और इसके अलावा सारे अकाउंट्स आपको ओपन करने पड़ेंगे जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहे हैं. एंड फाइनली यू विल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एंड दैट इज रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन के लिए भी ज्यादा लोड मत लो. एक सिंपल बात याद रखना, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग ले रहे हो तो ये वर्किंग बना देना, पहले कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर डिफरेंस और फिर इफेक्ट. एकदम सिंपल वर्किंग नोट है. पहले कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन ले लो, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लो, फिर डिफरेंस निकालो और इफेक्ट लो. डू वॉट एवर इज डन एंड डोंट डू वॉट एवर इज नॉट डन. इतना फॉलो करना है. मतलब कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की फिगर, फाइनेंस में फाइनेंस की फिगर, डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है तो लेस करने का. इट इज दैट सिंपल. कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की फिगर, फाइनेंस में फाइनेंस की फिगर, डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड करने का. लेकिन अगर आइटम क्रेडिट साइड वाला है तो कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की फिगर, फाइनेंस में फाइनेंस की फिगर, जो भी डिफरेंस आता है वो जो साइन दिखा रहा है उसका ऑपोजिट साइन अप्लाई करने का. प्लस पॉजिटिव डिफरेंस आया तो आइटम शुड बी सबट्रैक्टेड, नेगेटिव डिफरेंस आया तो आइटम इज टू बी एडेड.
यहाँ पे भी देखना इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव दोनों क्रेडिट आइटम थे, कॉस्टिंग में लिखा नहीं है, फाइनेंस में लिखा है, मतलब मेरा आंसर नेगेटिव है। आंसर नेगेटिव होने के बाद भी मैंने दोनों को ऐड किया बिकॉज बोथ वर क्रेडिट आइटम्स। तो इसको सिंपल तरीके से याद रखना, कॉस्ट कॉलम, फाइनेंस कॉलम, डिफरेंस, इफेक्ट। कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस में फाइनेंस की इंफॉर्मेशन। डिफरेंस पॉजिटिव ऐड, डिफरेंस नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस पॉजिटिव ऐड, डिफरेंस नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस पॉजिटिव ऐड, डिफरेंस नेगेटिव सब्ट्रैक्ट। समझे? क्रेडिट आइटम आएगा तो पॉजिटिव डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना और नेगेटिव डिफरेंस को ऐड करना, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर पूछा तो ऐड आइटम्स सारे के सारे क्रेडिट में आने चाहिए, लेस आइटम्स हम सारे के सारे डेबिट में आने चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट लॉस होगा तो डेबिट में स्टार्ट कीजिए। अब बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आती है इसका मतलब क्रेडिट साइड हेवी है, क्रेडिट साइड हेवी मतलब प्रॉफिट साइड हेवी है, तो यहां पे भी नेट प्रॉफिट एज पर अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट में आती है इसका मतलब डेबिट साइड हेवी है, लॉस साइड हेवी है, तो दिस विल बी नेट लॉस एज पर द अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेमोरेंडम अकाउंट पूछा है तो अकाउंट ही बनाने का, स्टेटमेंट बना के आने का नहीं। अगर मैं यहां पे फाइनेंस से स्टार्ट करता, तो पहले कॉलम में फाइनेंस लिखता, दूसरे कॉलम में कॉस्टिंग लिखा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम, प्लस आया तो ऐड, लेस आया तो माइनस, नेगेटिव आया तो माइनस। क्रेडिट आइटम के लिए माइनस आया तो ऐड कर दीजिए, प्लस आया तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट योर रिकंसिलिएशन का एक सम सॉल्व कर लेते हैं। A manufacturing company has disclosed net loss as per cost records. This is for the year ended 31st March 2024. However, their financial accounting records disclosed a net profit of 30,400 for the same period. The scrutiny of data for both the set of books of accounts revealed the following information. Factory overheads under absorbed, admin overheads over absorbed. Factory overheads under absorbed, admin overheads over absorbed, depreciation in finance, depreciation in cost. Income tax provision, transfer fees credited in finance. Solvency loss charged to finance. Notional rent of own premises charged in cost accounts. Opening stock in cost, opening stock in finance, closing stock in cost, closing stock in finance. Prepare a memorandum reconciliation account. Wow. सबसे पहले तो we are not supposed to prepare a reconciliation statement. We are supposed to prepare a memorandum reconciliation account. But that's fine. Taking costing loss as a base. अच्छा ये लाइन नहीं होती तो भी हम लोग costing को ही base बनाते, because until and unless it is specified or it is needed, we don't start reconciliation with financial records, because it is ultimately prepared by a cost accountant. Why would he think of starting with financial records? अब मैंने इसके लिए एक सिंपल वर्किंग नोट बताई थी आपको, एकदम सिंपल वर्किंग नोट, ज्यादा लोड इस उम्र में लेने का नहीं। आपको 4 मेन कॉलम्स बनाने और एक बनाने का पर्टिकुलर्स। किसी से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम्स का नंबर सेम रहेगा। What is my starting point? Cost records. So my first column will be cost, then I will write finance, then I will write difference, and then I will write effect. अब मैं एक एक आइटम उठा के लिख रहा हूँ क्वेश्चन में से, and that's going to be my working note. Correct? Okay then. इन्होंने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 3500। अब फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब बोला है, लेकिन अंडर एब्जॉर्ब किस में वो नहीं बोला है। अब एब्जॉर्प्शन अगर कॉस्टिंग में होता है तो अंडर एब्जॉर्प्शन भी कॉस्टिंग में होगा, तो इट इज एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब अगर कॉस्टिंग में मैंने एक्स लिखा तो फाइनेंस में उससे ज्यादा होगा। कॉस्टिंग में अगर एक्स लिखा तो फाइनेंस में उससे ज्यादा होगा। फाइनेंस में उससे ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल फिगर बड़ी है, कॉस्टिंग की फिगर छोटी है, तो मेरा डिफरेंस 30,500 आएगा। डिफरेंस को माइनस किया जाए। कीप इट वेरी सिंपल। डेबिट के जितने भी आइटम्स आएंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द साइन।
क्रेडिट आइटम आया तो रिवर्स द साइन। अब इसके बाद मेरा दूसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया है एडमिन। एडमिन ओवर एब्जॉर्ब बोला है। ओवर एब्जॉर्ब मतलब इट हैज टू बी ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन अगर कॉस्टिंग में होता है तो ओवर एब्जॉर्प्शन भी कॉस्टिंग में ही होगा। सो वाई minus 65,000 will be figure in finance because it is over, it is more in costing, it will be less in finance. Costing की फिगर ज़्यादा है, फाइनेंस की फिगर कम है, तो इसका मतलब 65,000 आपका जो है वो पॉजिटिव डिफरेंस आया जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा। Then I have been given depreciation. Depreciation मेरा कॉस्टिंग में 2,70,000 दिख रहा है क्वेश्चन में, और फाइनेंस में मुझे दिख रहा है 2,25,000। मेरा डिफरेंस है 45,000, लेकिन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव होने की वजह से इसको ऐड किया जाएगा। आफ्टर डेप्रिसिएशन आई हैव इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन इज ऑफ 50 to 400, और ये सिर्फ फाइनेंस में होगा, कॉस्टिंग में नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 50 to 400, जिसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। देन माय नेक्स्ट आइटम इज ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस के बारे में क्वेश्चन बोलता है इट इज क्रेडिट आइटम, क्रेडिटेड इन फाइनेंस 10,200। इफ इट इज क्रेडिटेड इन फाइनेंस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग, मतलब डिफरेंस आपका -10,200 आएगा। होल्ड ऑन, अगर ये डेबिट आइटम होता तो मैं माइनस कर देता, लेकिन ये क्रेडिट आइटम है तो वी विल हैव टू रिवर्स द ट्रीटमेंट। वी विल हैव टू रिवर्स द ट्रीटमेंट, इसको ऐड करना पड़ेगा हमको। देखो, डेबिट साइड के आइटम्स को फॉलो द साइन, क्रेडिट साइड के लिए रिवर्स द साइन एंड डू वॉट एवर इज डन। कॉस्टिंग में जितना लिखा है वो कॉस्टिंग में लिखो, डू वॉट एवर इज डन एंड डोंट डू वॉट एवर इज नॉट डन। नहीं लिखा मत लिखो, लिखा है तो लिखो, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। ट्रांसफर फी के बाद ऑब्सोलेट होने वाला लॉस ड्यू टू मटेरियल बीइंग ऑब्सोलेट, ये है 20,700। ये तो डेबिट आइटम है, इसका आंसर नेगेटिव है तो इसको तो माइनस ही करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास एक आइटम है नोशनल रेंट। नोशनल रेंट दिया है 49,000। नोशनल कॉस्ट जैसा आइटम सिर्फ कॉस्टिंग में हो सकता है, फाइनेंस में कभी नहीं होता। Notional cost is a cost which is adjusted, which is added to the cost structure because you want to maintain the cost structure to the normal level. You don't want any undue advantage being passed on to the customer. मतलब भले ही आप खर्चा नहीं कर रहे हो लेकिन रिसोर्स यूज कर रहे हो तो रिसोर्स का खर्चा आएगा, जो नॉर्मल खर्चा होता वो आएगा। सो 49,000 इज अ कॉस्ट, नोशनल रेंट, जो सिर्फ कॉस्टिंग में हो सकता है। वो कॉस्टिंग में लिखा, फाइनेंस में नहीं लिखा, तो आपका डिफरेंस आएगा प्लस 49,000 प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा। नोशनल रेंट के बाद आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में 1,38,000 और फाइनेंस में दिया गया है 1,15,000। अब इसका डिफरेंस आएगा 23,000। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट आइटम है तो इसको भी ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हमारा, ये हमेशा क्रेडिट आइटम होता है और क्रेडिट आइटम के लिए हमें ट्रीटमेंट रिवर्स करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग में आपने लिखा है 1,22,000। कॉस्टिंग में यू हैव रिटन 1,22,000। फाइनेंस में यू हैव रिटन 1,12,500। 1,22,000 माइनस 1,12,500 मतलब 9,500 का पॉजिटिव डिफरेंस है। 9,500 का पॉजिटिव डिफरेंस है, लेकिन बाबू क्रेडिट आइटम है तो हमको ट्रीटमेंट रिवर्स करनी होगी।
तो ये है मेरा वर्किंग नोट। सो आप हमेशा एक काम कीजिए, आप हमेशा ये टेबल बनाने के बाद, ये वर्किंग करने के बाद एक बार आंसर कैल्सी पे वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका आंसर कैल्सी पे आ गया, वेरीफाई हो गया, तो आप डायरेक्टली रिकंसिलिएशन के लिए जाना। क्योंकि क्या होता है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक, इफ यू हैव गॉन रॉन्ग एनीवेयर, लेट दोस थिंग्स बी रियलाइज एंड करेक्टेड, let those things be realized and corrected immediately before you start with reconciliation. So हमारा लॉस है 48,700 एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मैंने कहा था प्रॉफिट से स्टार्ट करना है तो पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट करो, लॉस से स्टार्ट करना है तो नेगेटिव से -48,700 से स्टार्ट करेंगे। ऐड लिखा हुआ आइटम ऐड होगा और लेस लिखा हुआ आइटम लेस। साइंस पे मत जाना, यू आर नॉट सपोज टू लुक एट साइंस, साइंस आर डिसेप्टिव। तुम्हारा प्रॉब्लम वही है, साइन पे जाते हो और फिर फंसते हो लाइफ में। साइंस पे नहीं जाने का, वर्ड्स पे जाने का। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ऐड लिखा तो ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है? तो मेरा पहला ऐड आइटम 65,000, मेरा दूसरा ऐड आइटम 45,000, मेरा तीसरा ऐड आइटम देखो है भले ही -10, लेकिन हमको ऐड करना पड़ेगा। देन 49,000, देन 23,000 माइनस 3,500, 52,400, 2,700, 9,500। 30,400 कैल्सी पे मेरा आंसर आया, विच इज योर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। टैली हो गया, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इन लोगों ने हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं मांगा है, इन लोगों ने हमसे मांगा है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। इन लोगों ने हमसे मांगा है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अब मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट जब भी बनाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर प्रॉफिट है तो स्टार्ट ऑन द क्रेडिट साइड, स्टार्टिंग पॉइंट अगर लॉस है तो स्टार्ट ऑन द डेबिट साइड। स्टार्टिंग पॉइंट अगर प्रॉफिट है तो स्टार्ट ऑन द क्रेडिट साइड, रिकॉर्ड ऑल एड आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज एड आइटम्स आर टू बी एडेड टू प्रॉफिट, लेस आइटम्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। सो स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट होगा तो स्टार्ट ऑन द क्रेडिट साइड, एड आइटम्स क्रेडिट में लिखो, लेस आइटम डेबिट में लिखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट से स्टार्ट करने के बजाय लॉस से स्टार्ट करते हो, जैसे यहां पे हुआ है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कितना है नेट लॉस? 48,700। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में स्टार्ट करता, लॉस है इसलिए डेबिट में स्टार्ट करना पड़ा। बाकी कुछ बदलेगा नहीं, एड आइटम्स क्रेडिट में ही रहेंगे, लेस आइटम्स डेबिट में रहेंगे, कुछ चेंज मत करना, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता है। अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते तो पॉजिटिव फिगर से स्टार्ट करके ऐड आइटम ऐड करते, अगर लॉस है तो नेगेटिव फिगर से स्टार्ट करके ऐड आइटम ऐड ही करते। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखने के बजाय डेबिट साइड में लॉस से मैंने शुरुआत की, लेकिन ऐड आइटम सारे के सारे क्रेडिट में ही लिखूंगा मैं। मेरा पहला ऐड आइटम है एडमिन ओवरहेड्स। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, फाइनेंस हो या कॉस्ट हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिकंसिलिएशन बनाने वाला कॉस्ट डिपार्टमेंट है, तो हम लोग हमेशा कॉस्ट डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। फाइनेंस वाले ने क्या किया है, हमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है कि हमने क्या किया है। तो मैंने एडमिन थोड़ा ज्यादा लिखा है, मैंने एडमिन थोड़ा ज्यादा लिखा है कॉस्टिंग में, तो इट इज ओवर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वैसे भी दिया ही था क्वेश्चन में, बट फिर भी एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कितनी है फिगर? 65,000। ऐड में दूसरा आइटम डेप्रीसिएशन। ओवरहेड्स के लिए भी यूज द वर्ड एब्सॉर्ब्ड, डेप्रीसिएशन के लिए भी यूज द वर्ड चार्ज्ड, स्टॉक के लिए भी यूज द वर्ड वैल्यूड, और बाकी सब के लिए रिकॉर्डेड। तो डेप्रीसिएशन अगर कॉस्टिंग में ज्यादा है
तो it is overcharged in cost records. Depreciation overcharged in cost records. So my next item, by depreciation overcharged in cost records. Overcharged in cost records मतलब 45,000. Overcharged in cost records 45,000. ट्रांसफर फी भी ऐड करनी है, किया क्या है, इग्नोर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. सो बाय ट्रांसफर फीस ignored in cost records. Transfer fees ignored in cost records 10,200. Next add item, notional rent. By notional rent in cost records only. notional rent है कितना, 49,000. देखो मैंने कभी भी फाइनेंस को ब्लेम नहीं किया. आई एम राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्टिंग परस्पेक्टिव. कॉस्टिंग में ज़्यादा तो ओवर, कॉस्टिंग में कम है तो अंडर, डेप्रीसिएशन है तो चार्ज, ओवरहेड्स है तो एब्जॉर्ब्ड. नोशनल रेंट भी मैंने सिर्फ कॉस्ट में लिखा है तो मैंने वही लिखा. इग्नोर्ड इन फाइनेंस वगैरह कुछ नहीं, मुझे लेना देना नहीं है फाइनेंस से. देन माय नेक्स्ट ऐड आइटम, ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्टिंग में ज़्यादा लिखा है तो ओवर वैल्यूड. बाय ओपनिंग स्टॉक overvalued in cost records 23,000. Now all less items are to be recorded on the debit side. All less items are to be recorded on the debit side. और लेस आइटम के लिए याद रखना जो हुआ है वही लिखना है. जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कम है कॉस्टिंग में तो अंडर एब्जॉर्ब्ड. इनकम टैक्स इग्नोर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ऑब्सोलेंस लॉस इग्नोर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. नोशनल रेंट ऐड वाला आइटम है, लेस में लास्ट आएगा ये. ओपनिंग स्टॉक अंडर, सॉरी ज़्यादा लिखा है ना कॉस्टिंग में तो ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. तो अगर यही लिखना है तो ये रहा आपका डेबिट साइड. चेक कर लो वन बाय वन. सो 65 प्लस 45 प्लस 10,200 प्लस 49,000 प्लस 23,000. तो आपकी टोटल आएगी 192,200 और ये 192,200 माइनस 30,400 बचा है बैलेंस. और बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट साइड हेवी है, प्रॉफिट साइड हेवी है. मतलब नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. समझ में आया? अरे यस और नो? ये हुआ आपका रिकंसिलिएशन. समझ में आया? ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, स्टॉक वैल्यूड और सबका पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट रिकॉर्ड्स. सारे सेंटेंस कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे. कॉस्टिंग में ज़्यादा तो ओवर, कॉस्टिंग में कम तो अंडर. कॉस्टिंग में नहीं लिखा तो इग्नोर, सिर्फ कॉस्टिंग में लिखा तो वैसा लिखो, इंक्लूडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. फाइनेंस वालों को ब्लेम करने का नहीं. इज दैट पार्ट क्लियर? स्टेटमेंट पूछा होता तो डाउट ही नहीं आता. अकाउंट अगर पूछा है तो अकाउंट ही देना पड़ेगा, इतना याद रखना. अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में होती तो इसका मतलब डेबिट साइड हेवी है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस ले लेते. समझ में आया? बट बैलेंसिंग फिगर डेबिट में मतलब इट इज अ प्रॉफिट.
स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में स्टार्ट करता, स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है इसलिए डेबिट में स्टार्ट किया. दैट इज व्हाट योर रिकंसिलिएशन इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.